So, very good afternoon. Today on 16th of September 2024, I am going to take this class in this refresher course of Ravi Shankar University, Raipur. And as you know that topic of today's session will be high performance computing. Part 2, part 1 we have already seen, and I am starting this lecture with the quote, famous quote by the scientist named Sidney Funback. Today's large computers, mainframes, would have been considered supercomputers 10 to 20 years ago. By the same token, today's supercomputers will be considered state-of-the-art standard equipment 10 to 20 years from now. Means supercomputers of 10-20 years earlier ago, those are nowadays a normal computers. And similarly, the term which we are using for as supercomputer for the computers, those computers will become a normal computer after 10-20 years. In fact, supercomputer, I told earlier also, this is just a trade name. That means technical name is parallel computer. So, I have a very large content I want to cover here. We will deal with the principles of pipelining is the easiest and most economical way to achieve parallelism in an uniprocessor machine. This sentence I have written. What do you mean by that? See, parallelism implies itself that there are many processors. How to parallelize? To distribute the work among 2 or 3 persons. Suppose we are hiring some laborers for grass cutting. If there is one labor, then there is no question of parallelism. Question of parallelism arises only when there are 2 or more laborers. Similarly, here also, if there is one processor, then in that way, there is no question of parallelism. In order to achieve parallelism, there must be at least 2 or more processors. But no, here even in one processor, that is called uniprocessor, parallelism is possible. And the technique which makes this possible, that is called pipelining. That is why here I have written pipelining is the easiest and most economical way to achieve parallelism in an uniprocessor machine. तो आप पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि even if there is single processor, then also parallelism is possible. How, that I will tell afterwards. Again, that means I am just giving a brief overview of top 5 supercomputers in world and in India. And I told that with the site of top500.org, you can view the list of top 500 supercomputers in world. And that list gets updated every 6 months. And this is the current list. And at present, on this date, these are the computers considered to be top 5. Of course, we can get the list of 500 computers. Similarly, top 5 supercomputers of India and supercomputing mission पर भारत अब supercomputer भी made in India. This was the cutting of newspaper. This high performance computing, India, government of India is stressing much, is giving very much attention. And you might be seeing the news, hearing the news that semiconductor industries are being invited to set up their plants here. You know that India has done a good
deal of work in case of software, but in case of hardware, India has to do a lot of work. And therefore, this topic of high performance computing, that has become of much more importance in present days. And you will see also that this topic now, the time is coming, rather has come, when you will come across various courses on high performance computing in AICTE or other type of FDPs, etc. You will frequently see such type of courses dedicated only for high performance computing. Anyway, so topics which we will cover today, that is introduction, how pipelining works, scalar, superscalar, etc., pipeline performance, pipeline classification, pipeline hazards, dependencies, etc., how to deal with that, avoid, and scheduling. And then we will see case study of only one unit, that is called floating point adder, state transition diagram, MAL, conclusion, etc. I don't know how much we will be able to cover today in a lecture of 1.5 hours. So, in order to increase the speed of a processor, various techniques are adopted, such as to increase the clock speed, to widen the data bus, pipelining. Pipelining increases throughput without much increase in hardware. Example of pipeline is PET counseling, reporting, document verification, merit generation, allotment, etc. First of all, you understand the concept and principle of pipelining before we proceed ahead. Pipelining, that means I had told very interesting thing, very peculiar thing, that only in one processor also pipelining is possible. So, work is divided into stages, and I had told earlier also, telling now also, that if you have to carry out a very small type of a calculation, 2 plus 2 is equal to 4, there will be at least 5 cycles within computer. Load, decode, fetch, execute and write. Maybe more also. Suppose a statement or this expression is slightly more complicated, then maybe 2-3 cycles for execution, that may be needed. I am taking 1 cycle for one particular operation. Then also 5 cycles at least are needed to carry out even a single instruction within a computer. Now see the beauty. These are overlapped. Overlapped means what? What do you mean by overlapping? Overlapping, I am now giving one जनरल टाइप ऑफ एग्जाम्पल, थोड़ा हट के कंप्यूटर से हम लोग आते हैं एक जनरल, मान लीजिए एक सेमिनार कॉन्फ्रेंस कोई ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पर, तो एक रजिस्ट्रेशन काउंटर वहाँ पे बैठाए 2-3 वॉलंटियर स्टूडेंट वगैरह को. somebody comes here, he makes his registration in the register, then that fellow comes on the next table or next person, and suppose that person is providing him the kit. When this person comes to the next, then again a fresh or new candidate enters into the first stage. Then this person comes again to the next, suppose he puts a badge over here, then that previous person comes here and a new person again enters. This is the real time example of pipelining. Suppose some counseling for admission purpose etc. is going on. Students spot round counseling just 2-3 days back we have conducted in our department also. What we are doing, that suppose various number of students have come up, seats are limited.
then we'll take their document, we'll study, and then we'll arrange them in merit order. यह अलग बात है कि हमको मेरिट में अरेंज करके मिली हुई थी डायरेक्टेड से ही, डायरेक्ट, तो ठीक है, डजेंट मैटर. दिस इज वन स्टेप. then you will display that, you will check their document verification, merit generation, and then you will go on allotting the seats. So entire step can be divided. हम लोग का तो छोटा ही डिपार्टमेंट है. जब बड़ी स्केल पर हज़ारों लोग आते हैं, पीएटी काउंसलिंग होती थी पहले, जब ऑफलाइन प्री इंजीनियरिंग टेस्ट काउंसलिंग आई एम टेलिंग, देन very big, some sort of mela type of things were happening at that time. तब ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस पाइपलाइन. हाउ पाइपलाइनिंग. अच्छा, वन मोर थिंग हियर आई एम आस्किंग, जो स्टार्टिंग था हमारा कि 10-20 years बैक सुपर कंप्यूटर इज नाउ ए नॉर्मल कंप्यूटर. सो वाई? बिकॉज every day, every time, this research and development is going on to improve up the performance in terms of speed, accuracy, everything. So common practice to increase up the speed is what? To increase up the microprocessor speed, that is called bandwidth also. You go in market to purchase some PC, laptop, whatever. तो आप देखते होंगे सम गीगाहर्ट्ज स्पीड इज मेंशन्ड. एंड वन मोर थिंग यू कैन नोटिस, इवन देयर इज स्लाइट वेरिएशन इन गीगाहर्ट्ज 0.1, 0.2, स्पीड विल इंक्रीज ड्रेस्टिकली. माने आप मार्केट में अगर आप सर्वे करेंगे, अगर आपके लैपटॉप का या उसका पीसी का गीगाहर्ट्ज स्पीड आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो काफ़ी रेट बढ़ेगा. रैम हार्ड डिस्क से उसका मैटर नहीं करेगा. That is one thing, that is called clock speed. Okay, that means work is going on in that direction also. Okay, second is to widen the data bus. Now in this particular lecture I am not covering what is data bus, address bus, control bus. 3 types of buses are there. I am just telling only that to widen the data bus so that large number of data can travel simultaneously, just like you are widening the road. Okay. Third is to increase pipeline. And earlier I told that pipelining is the easiest and most economical way. तो ये सब चीज़ कॉस्टली है. जैसे मैंने बताया, क्लॉक की स्पीड आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे, रेट तेज़ी से शूट अप होगा. वैसे ही टू वाइडन द डाटा बस, दैट आल्सो इन्वॉल्व्स a lot of hardware. लेकिन पाइपलाइनिंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर आल्सो. देयरफॉर कॉस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस पाइपलाइनिंग. तो हाउ पाइपलाइनिंग much, I will say that cost does not change with the introduction of concept of pipelining to some extent. It hardly affects the cost. How pipelining improves the performance? In conventional computer, 5 clock cycles are needed to execute one instruction: load, decode, fetch, execute and write. Therefore, 100 MHz processor will yield 20 MIPS. Unit of throughput is MIPS. When processor is fully operational in pipelining, each stage remains always busy. Therefore, one instruction will execute in each cycle. Therefore, 1 MHz processor will yield 100 MIPS. This is called scalar architecture. I will go on explaining all these things. If you also please read this one. If 5 pipelines run in parallel, then 5 instructions will execute in each cycle. Therefore, 100 MHz processor will give 500 MIPS. This is called superscalar architecture. Superscalar architecture is also called vector processor. क्या बताए आपको कि there are 5 basic steps: load, decode, fetch, execute and write. And 5 cycles are needed to perform one instruction. To execute one instruction, ये मैंने आपको बताया. अब बात करें कि
आपका एक इंस्ट्रक्शन अगर 5 साइकिल में एग्जीक्यूट होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यू आर ऑल्सो द यूज़र ऑफ दिस कंप्यूटर एट्सेट्रा। तो 5 साइकिल्स मीन्स 1 इंस्ट्रक्शन। एंड सपोज यू आर परचेजिंग ए कंप्यूटर फ्रॉम मार्केट ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज़। 100 मेगाहर्ट्ज़ आई एम टेकिंग फॉर कन्वीनियंस, आजकल गीगाहर्ट्ज़ की मशीन आती हैं, तो 100 मेगाहर्ट्ज़। तो 100 मेगाहर्ट्ज़ मीन्स व्हाट, बता सकते हैं आप लोग? 100 मेगाहर्ट्ज़ माने क्या होता है? 100 मेगाहर्ट्ज़ माने 100 इंटू 10⁶ साइकिल्स पर सेकेंड, ये मतलब होता है। मैंने पहले कहा कि 5 साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन, तो आप बताइए कि 100 इंटू 10⁶ साइकिल में कितना इंस्ट्रक्शन, उसको 5 से आप डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा कितना, जो मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ लिखा नहीं है शायद, 100 विल यील्ड 100 यस 20 MIPS। आप 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 20। ये 20 अगर मेगा को हम लोग यहाँ पे मिलियन वर्ड यूज़ करें तो आ जाएगा 20 MIPS, माने 20 मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और आप लोग MIPS का नाम सुने कि नहीं? देखिए, अब मैं टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस मेजर करना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। कौन सा कंप्यूटर अच्छा है, मैं बोलूँ और जनरलाइज करके थोड़ा सा ऐसी बात करूँ कि कंप्यूटर क्या, आप किसी पर्सन ही का, आप किसी पर्सन को बोलें कि वो अच्छा है कि ख़राब है, तो आसान काम है क्या? कोई एक पर्सन किसी एक प्रकार से अच्छा है तो दूसरे उसमें कुछ खराबियाँ होंगी, कोई दूसरा पर्सन में कुछ अच्छा ही है तो कुछ खराबी होगी। तो आप ये नहीं बोल सकते कि कौन सा पर्सन अच्छा है। वो टॉप कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा हो हर प्रकार से। कंप्यूटर में भी एक प्रकार से अच्छा है तो दूसरे प्रकार से हो सकता है कुछ उसमें ख़राब हो। लेकिन होता ये है कि आप लोग जब मार्केट जाते हैं तो आप उसका मेगाहर्ट्ज़ स्पीड या गीगाहर्ट्ज़ स्पीड देख के बढ़िया, यार इसका कॉस्ट ज़्यादा है तो अच्छा ही होगा, जनरल थिंकिंग तो अच्छा ही है तो ख़रीद भी लेते हैं, ठीक है, मार्केट वाला भी ठीक, आप भी खुश। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस लैपटॉप या उसका आप ज़्यादा हायर स्पीड वाला ख़रीदे, हो सकता है कि वो स्लो परफॉर्मेंस दे, उसका मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड अगर कम है मान लीजिए, तो ओवरऑल आउटपुट उसका घट गया। और वो क्या चीज़, दैट इज़ डिसाइडेड बाय मेनी अदर फैक्टर्स, दैट इज़ नॉट द टॉपिक, आई कैन नॉट कवर हियर। और ये तो मैंने आपको एक परफॉर्मेंस पैरामीटर बताया कि एक क्या चीज़ बताया मैंने, मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक की स्पीड, एक बताया अभी MIPS। केवल इतना ही नहीं है, फिर बेंचमार्क्स होते हैं, बनाए गए वर्ल्ड में बेंचमार्क्स, लिनपैक और वेरियस। उसमें क्या होता है, अब कुछ नहीं, आप माने कंप्यूटर इज सब्जेक्टेड टू वेरियस बिग प्रोग्राम्स एंड देन टाइम इज मेजर्ड, कंप्यूटेशन टाइम। सब एक तरफ रह गया कॉन्फ़िगरेशन, पता चला एक कंप्यूटर दिए तो कोई थर्ड ही कंप्यूटर है नॉर्मल टाइप का जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। दिस इज ऑल द थिंग्स विच आर पॉसिबल। तो आई एम नॉट गोइंग इन टू दोज डिटेल्स। 100 megahertz processor will yield 20 MIPS, but without pipeline. But what will happen if you are providing slight pipeline? Then that means when that pipeline is fully loaded, then in each cycle one instruction will start coming out. I will deal with this thing afterwards also. Then it will start yielding 100 MIPS. With the diagram I will explain. If 5 pipelines are running in parallel, it will start giving even 500 MIPS, and that is called superscalar architecture and also called vector processor. And it is same thing
you are making use of nowadays GPUs etc. See, this pipelining concept is used nowadays in every processor, every computer. This is such a common phenomenon nowadays. I am coming again on without pipeline. विदाउट पाइपलाइन, अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूं कि आपको वही सेमिनार कॉन्फ्रेंस वाला मैं एक एग्जांपल दूं। आपने कहा कि नहीं, एक पर्सन यहाँ पर आया है, वो रजिस्टर में लिखा, अब वही पर्सन आगे गया तो आपने उसको किट प्रोवाइड किया, फिर आगे गया तो आपने उसको बैज लगाया, जब वो काम हो गया तभी नेक्स्ट को हम एंट्री देंगे। तो ये क्या हुआ? विदाउट पाइपलाइन। और दूसरा मैंने कहा कि वह पर्सन आगे गया तो आप एक एंट्री दे दिए, दैट इज स्केलर पाइपलाइन, माने सिंपल टाइप का पाइपलाइन। तो विदाउट पाइपलाइनिंग में आई एम टेकिंग 3 इंस्ट्रक्शंस एंड 5 cycles per instruction. So how many number of total instructions are there? 15 instructions, 15 cycles. एक इंस्ट्रक्शन के लिए 5, तो 3 के लिए 15. Simple. I am introducing a new term that is called CPI and IPC, because this we give the students as numerical problem. तो cycle per instruction and instruction per cycle both are reverse to each other. माने cycle per instruction, how many cycles are needed for one instruction? IPC, instruction per cycle, in one cycle how many instructions are executed? So 3 instructions, ये जबकि जमा रहे हैं केवल कि 3 instructions are taking 15 cycles, then one instruction will take 15 upon 3, मतलब 5 cycle, that is called CPI, number of cycles per instruction. एक इंस्ट्रक्शन में कितना साइकिल? 5 साइकिल, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकली CPI. उल्टा जबकि जमाते हैं, 15 साइकिल्स आर टेकन बाय 3 इंस्ट्रक्शंस, तो 1 साइकिल में कितना इंस्ट्रक्शन? 3/15, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल. जब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको कहेंगे IPC, मानी इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल. मतलब एक साइकिल में कितना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ. अब मैंने एग्जांपल लिया अपने कन्वीनियंस के लिए एक सिंपल कि 100 मेगाहर्ट्ज का कोई प्रोसेसर है, तो मैंने बताया 100 × 10⁶ साइकिल्स पर सेकेंड. तो इसी जबकि को आगे हम लोग जमाएं तो इसलिए 100 × 10⁶ साइकिल में कितना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो पाएगा? तो 3 × 15 डिवाइड 3/15 × 100 × 10⁶. तो अब क्या आएगा? ये 20 × 10⁶ आता, हमने 10⁶ को ड्रॉप किया, हो गया 20 MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. दिस इज कॉल्ड स्केलर आर्किटेक्चर. और ये जो है इसका एक वर्ड है थ्रूपुट. थ्रूपुट मतलब एफिशिएंसी जैसे होती है कि 1000 पैकेट्स आर सेंट एंड 800 आर रिसीव्ड, देन थ्रूपुट इज दैट मीन्स 80%. तो दैट वे दिस इज कॉल्ड throughput, that is throughput of this is 20 MIPS without pipelining. देखते हैं पाइपलाइनिंग करके. देखिए पाइपलाइनिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग पाइपलाइनिंग नाउ, दैट इज कॉल्ड स्केलर आर्किटेक्चर. स्केलर पाइपलाइनिंग दैट इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ पाइपलाइनिंग. इसमें यू सी द फिगर नाउ. इसमें क्या है? लोड, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, राइट. एंड जैसा मैंने पहले कहा था कि दीज आर ओवरलैप्ड. ओवरलैप्ड का मतलब जब मैंने बताया कि एक पर्सन यहाँ आए तो नेक्स्ट यहाँ पर आया तो यहाँ पर एक नया आ गया, फिर ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर पिछला एक और आ गया. तो इस प्रकार से ये क्या हुआ? ओवरलैप्ड है. माने आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लोड, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, राइट, इसके नेक्स्ट साइकिल से नया आ रहा है, उसके नेक्स्ट साइकिल से नया आ रहा है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको? ये समझ में आ रहा है आपको जो बोल रहा हूँ? केमिस्ट्री वाले नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है. जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर मोबाइल यूज़ करते हैं, तो कोई मतलब नहीं है. ये मैं तो इसीलिए जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं. तो
ये जो है ना आपका नेक्स्ट साइकिल से स्टार्ट हो रहा है सेकेंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड हो रहा है, और एक बात। तो इस प्रकार से ये 3 इंस्ट्रक्शंस आर टेकिंग। नाउ आप देख सकते हैं कितना साइकिल ले रहा है 3 इंस्ट्रक्शन, 7 साइकिल। पहले कितना ले रहा था 15। तो 1 इंस्ट्रक्शन कितना लेगा 7/3। CPI क्या हो गया 7/3। उल्टा जबकि जमाएंगे तो 7 साइकिल में 3 इंस्ट्रक्शन, तो एक साइकिल में 3/7, उसका नाम हमने कहा IPC। तो 100 × 10⁶ साइकिल के लिए वो आ जाएगा 42.855 MIPS। एंड दिस इज़ यूज्ड इन रिस्क कंप्यूटर। और मैं अभी बताऊंगा भी, रिस्क 5 सुपर कंप्यूटर पर अभी वर्क चल रहा है इंडिया का। तो रिस्क में ये कॉन्सेप्ट है। और एग्जीक्यूशन टाइम बिफोर अपॉन एग्जीक्यूशन टाइम आफ्टर, दैट इज इक्वल टू 15/7, दैट इज कॉल्ड स्पीड अप। स्पीड अप मीन्स हाउ मेनी टाइम्स इट हैज़ बिकम फास्टर, कितने गुना फास्ट हुआ। तो कितने गुना फास्ट हुआ, तो पहले वो कितनी साइकिल ले रहा था 15 विदाउट पाइपलाइन वाले में, अब विथ पाइपलाइन में कितना साइकिल ले रहा है 7 ओनली। सेम वर्क 3 इंस्ट्रक्शन, हाउ मेनी साइकिल्स आर नाउ रिक्वायर्ड, ओनली 7। सो स्पीड अप इज नाउ 15/7। दिस इज क्लियर। एंड थ्रूपुट इज 42.855 MIPS। तो आप ये देखिए, जो पिछला था अपना विदाउट पाइपलाइन, जिसमें हमने लोड डिकोड फेच एग्जीक्यूट एक बनाया, वो जब ख़त्म हो गया तो नया 5 साइकिल बनाया, वो भी ख़त्म हो गया तो नया साइकिल बनाया, टोटल 15 साइकिल लगा। इसके कंपैरिजन में यही 3 इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे कितना साइकिल लग रहा है, केवल 7। ये हुआ स्पीड अप। और ये देखिए सिंगली प्रोसेसर में हाउ ब्यूटीफुली दिस स्पीड अप इज, माने स्पीड गेन इज अचीव्ड अप। थ्रूपुट इज आल्सो इम्प्रूव्ड, एवरीथिंग इज इम्प्रूव्ड, परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड, MIPS इज इम्प्रूव्ड। क्लियर। तो ये हुआ एक प्रकार का स्केलर पाइपलाइन, जिसका मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया है केवल। सुपर स्केलर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि वेरियस पाइपलाइंस रन इन पैरेलल। अब मान लीजिए कि आपको यही एडमिशन करना है, तो क्या होगा, कल ही टुडे 16 सितंबर, तो यस्टरडे 15 सितंबर इंजीनियर्स डे वाज सेलिब्रेटेड इन दिस ऑडिटोरियम ओनली, आई वाज आल्सो प्रेजेंट। क्या हुआ, बहुत सारी भीड़ आई गई, और जो डिनर कट की लाइन थी उसमें बहुत बड़ी लाइन लग गई, सब लोग प्लेट लेके बहुत लंबी लाइन लग गई। तब मेरे मुंह से अपने आप निकल रहा था कि इनको 2 काउंटर बना देना था। तो 2 काउंटर होता तो लाइन डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाती, मटेरियल तो उतना ही लगने वाला था ना खाने वाले उतने ही है, लेकिन वो अगर 2 पैरेलल लगा देते, एक इस तरफ एक उस तरफ, तो लाइन तो डिवाइड हो जाती। तो ये कुछ उसी प्रकार का है। मुझको अचानक से एक ध्यान आ गया, कल ही के रात की बात है, ये कल हो रहा था। यस। तो अगर ये आप इसी में अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, रश है, तो आपने यहाँ पे एक टेबल लगा दिया, रजिस्ट्रेशन काउंटर एक पीछे लगा दिया, एक और पीछे लगा दिया। नाउ 3 पीपल विल एंटर, 1 ऑन दिस, सेकेंड ऑन दैट, थर्ड ऑन दैट। तो इन द सेम वे हियर पार्शियल पैरेललिज्म, माने देयर आर 3 इंस्ट्रक्शंस entering together, I have shown, and in this manner total number of instructions have become now 9, but clock cycle is remaining only 7 still, and therefore now you can see the speed up, that 9 instruction would have taken earlier how many number of cycles, 9 into 5, that is 45. Now it is taking only 7. Speed up is 45/7. कितना ज़्यादा बढ़ गया स्पीड अप। तो 9 इंस्ट्रक्शंस, अब जबकि जमाए 9 इंस्ट्रक्शंस आर टेकिंग 7 साइकिल्स, सो 1 इंस्ट्रक्शन विल टेक 7/9, दैट इज कॉल्ड CPI। मैंने एक नाम दे दिया आपको। तो 7/9 उल्टा जबकि जमाए तो 7 साइकिल में 9 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो 1 साइकिल में
9/7 होंगे, इसको हमने कहा IPC, इसलिए 100 इंटू 10⁶। ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 100 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर हमने अज्यूम किया। तो यस, सर इसमें जो 3 इंस्ट्रक्शंस है दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस नॉट डिपेंडिंग ऑन यस, ये कैसा? मैं बताऊंगा। दैट शुड बी इंडिपेंडेंट, तभी हो पाएगा। डिपेंडेंट अगर रहेगी, डिपेंडेंसी रहेगी, पैरेललिज्म में एवरीवेयर यू हैव टू टेक केयर दैट। लोड ज़्यादा होगा। अगर नहीं, अगर पिछला ये अगर इंस्ट्रक्शन सेकेंड इज डिपेंडेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन 1, देन इट वैल्यू टू वेट, उसका भी है सॉल्यूशन, उसमें अभी आएंगे, उस पर हैजार्ड अवॉइडेंस देखेंगे, हाउ टू डील विद दैट प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड हैजार्ड, पाइपलाइन हैजार्ड। तो हाउ टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम वी विल सी आफ्टर। थ्रूपुट का जो फार्मूला क्या है पूरा कैलकुलेट करने का? थ्रूपुट जो कैलकुलेट करने थ्रूपुट यही है कि आपके 1 सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। देखिए, थ्रूपुट की डेफिनेशन बदलती रहती, मैं आपको बताऊं। नहीं, डेफिनेशन नहीं बदलती, लेकिन उसकी यूनिट बदलती रहती है। कंप्यूटर नेटवर्क में लेंगे, इंटरनेट में, तो नंबर ऑफ पैकेट्स पर सेकेंड बोलेंगे। यहाँ पर ले रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड बोलेंगे। तो और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन दैट इज इन RISC 6000 प्रोसेसर, कई सारे हैं, लेकिन मैं एक इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो, बहुत सारे प्रोसेसर में। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस का पैरेललाइज हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस आर गेटिंग पैरेललाइज्ड। अब देखिए, एक नया पाइपलाइन है, उसका नाम है अंडर पाइपलाइन। आप इसमें देखिए कि आफ्टर 2 साइकिल, अभी आपके वही डिपेंडेंसी वाला प्रॉब्लम अभी बात करेंगे, तो लोड डिकोड के बाद से सेकंड इंस्ट्रक्शन आ रहा है, और फिर से 2 साइकिल के बाद से थर्ड इंस्ट्रक्शन आ रहा है। यही जो डिपेंडेंसी वाली बात है, इनफैक्ट पूरी तरह से डिपेंडेंसी वाली बात भी नहीं है। इसमें ऐसा कभी कभी होता है कि जैसे काउंटरी पर है, हम लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर की बात करें, तो कोई एक पर्सन आया, वो कुछ सेकंड स्टेज पे आके रुक गया, कुछ बात करने लग गया, तो उसके कारण पहले वाला भी तो रुका रहेगा ना। तो अब वो बार बार होने लग गया, माने ऐसा, तो बोलेंगे यार ऐसा करना कि ये जब इधर आ जाएगा ना तभी उधर छोड़ना। जैसे ट्रेन है, तो बोले ठीक है यार, ये अगला स्टेशन है ना, वो ट्रेन निकली, दूसरा स्टेशन, दूसरी ट्रेन आने लग गई, नहीं, उसको यहाँ से क्रॉस हो जाने देना, अगला एक और स्टेशन, तब लाएंगे ट्रेन को। तो ये अंडर पाइपलाइनिंग है। अंडर पाइपलाइनिंग माने इंटेंशनल टाइम डिले थोड़ा सा। तो हम लोग नेक्स्ट साइकिल पर इंट्रोड्यूस नहीं किए, हम लोग उसके भी, तो इसका ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेकिन उसके बदले क्या मिल रहा है अपने को, ये हो रहा है कि इसमें उस तरह का जो प्रॉब्लम हो रहा था, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो वो हम लोग का एक सेफ्टी मार्जिन बन गया। तो 3 इंस्ट्रक्शंस आर टेकिंग 9 साइकिल्स। अब देखिए, आप ये काउंट करेंगे तो ये आएगा 9 साइकिल। तो 3 इंस्ट्रक्शंस आर टेकिंग 9 साइकिल, सो 1 इंस्ट्रक्शन विल टेक 9/3, दैट इज CPI इस। एंड उल्टा जबकि जमाए तो 9 साइकिल में 3 इंस्ट्रक्शन, तो एक साइकिल में 3/9 IPC इसको कहा जाएगा। और इसलिए 100 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर पर कमिंग बैक, तो 100 इंटू 10⁶ साइकिल में 1/3, तो 33.33 MIPS। और इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है CISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो RISC एंड CISC ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे स्टूडेंट एंड टीचर, वैसी RISC एंड CISC ये दोनों साथ साथ चलते हैं हमेशा। तो ये आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हुआ। अब आते हैं, देखिए, अब इसका उल्टा अंडर पाइपलाइनिंग का जस्ट अपोजिट बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सुपर पाइपलाइन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि आपका ये वाला अभी ख़त्म हुआ नहीं है कि अगला इंस्ट्रक्शन चालू हो गया। जैसे कि आपका रेलवे प्लेटफॉर्म है, अभी ट्रेन का इंजन चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, ट्रेन आगे बढ़ने लग गई,
और अगली ट्रेन आने लग गई। अभी प्लेटफॉर्म अभी उस वाले ट्रेन से खाली नहीं हुआ था कि अगली ट्रेन पीछे पीछे आने लग गई। माने ये स्टेज आपका फुल्ली फ्री हुआ ही नहीं था कि अगला इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस धीरे धीरे होने लग गया। माने कह सकते हैं कि स्टेज के अंदर भी आप एक सब स्टेज ऐसा बना दिए, अब लग गया कि इनका काम ख़त्म होने वाला है तो चलो भाई नेक्स्ट भी इंट्रोड्यूस हो जाओ। ये बड़ा स्पेशल केस है। तो ये कहलाते हैं सुपर पाइपलाइन। और इसमें आप देखेंगे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ओनली, और इसमें स्पीड अप आएगा 15/6 का, क्योंकि 3 इंस्ट्रक्शंस विल टेक 15 साइकिल। तो यहाँ पर क्या ले रहा है 6, और आप जबकि जमाए 3 इंस्ट्रक्शंस आर टेकिंग 6, तो 1 इंस्ट्रक्शन 6/3 CPI, और 6 साइकिल का 3 इंस्ट्रक्शन उल्टा जबकि जमाएंगे 1 साइकिल इतना लेगा, तो 100 × 10⁻6 साइकिल 50 MIPS आएगा। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है क्रे 1 सुपर कंप्यूटर। और थोड़ा सा आपका ऐसी इंटरटेनमेंट के लिए मैं बताऊं, थोड़ा सा चेंज, ये क्रे वही है जो कि क्रे सुपर कंप्यूटर इंडिया लेना चाह रहा था, और क्रे कॉरपोरेशन या USA नहीं देना चाह रही थी, या तरह तरह की कंडीशन लगाई जा रही थी। और क्रे XMP लेना है तो क्रे YMP। और मैंने बताया कि उस समय का ये एक हॉट टॉपिक न्यूज़पेपर का बन गया था, हेडलाइन। इवन वो समय आपके जो इंटरव्यूज़ वगैरह का उसका भी क्वेश्चन बन गया था, इतना ज़्यादा। और आज भी आप जानते हैं कि एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो रोज़ ही हम लोग देखते थे कि पेपर में आ रहा है कि ये बात हुई, तो नहीं, तो फिर ले दे के परेशान होके भारत के प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर ने CDAC के चेयरमैन से पूछा कि भाई बहुत हो गया, आप बताइए बना पाएंगे क्या। तो उन्होंने कहा यस हम बना लेंगे। तो टाइम फ्रेम हुआ, फिर वर्ल्ड से सब साइंटिस्ट को बुलाए गए और बहुत बढ़िया वर्क हुआ, और भारत के इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर बन के तैयार हुआ। तो ये क्रे वही कंपनी, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर। तो अगर आपको मैं कहूँ कि इसका डायग्राम कॉपी में बनाइए तो आप बना सकते हैं। ये डायग्राम जिनकी ड्राइंग, आपकी ड्राइंग अच्छी है मैडम जिनकी ड्राइंग अच्छी है वो जल्दी बना लेंगे। मेरी पर्सनली ऐसी आपसे बात कर रहा हूँ थोड़ा इधर उधर, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन ये पढ़ाते पढ़ाते मेरा हाथ सेट हो गया है। तो आप लोग भी बनाइए, मैं भी बनाता हूँ, देखते हैं कितना जल्दी बना पाते हैं। ये वाला डायग्राम बनाना है बस, सुपर पाइपलाइन का। इसमें नोट पैड आएगा ना, सुपर पाइपलाइन, हाँ वो थोड़ा पेन राइट। ये देखिए मैं बनाता हूँ। लोड, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, राइट, ये पहला इंस्ट्रक्शन है। ये देख लीजिए आप टेक्निक। अब सेकंड इंस्ट्रक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसा, और इसके भी आधा बाहर गया, लोड, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट एंड राइट। और थर्ड इंस्ट्रक्शन फिर इसके नीचे से चालू हुआ, यहाँ पर आ गया, और ये यहाँ आ गया, लोड, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट एंड राइट। अब देखिए कितना साइकिल हुआ, 1 2 3 4 5, और ये एक और 6। यही डायग्राम बना है। मेरा हाथ सेट है, आप लोग से इतनी आसानी से नहीं बनेगा, क्योंकि इसको आपको एडजस्ट करना है कि आपके 6 साइकिल में कंप्लीट भी हो जाए। इससे आपको सिंक्रोनाइज करना है। तो इंटरेस्टिंग है, ये सुपर पाइपलाइन कहलाता है। और इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया क्रे 1 सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है। ये क्लोज करें तो इसके बाद से सुपर स्केलर सुपर पाइपलाइन। ये क्या चीज़ है सुपर स्केलर सुपर पाइपलाइन? ये सुपर पाइपलाइन ही है, लेकिन उसमें सुपर स्केलर आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस कर दिए। उसके कारण
पैरेललाइजेशन में मैनी इंस्ट्रक्शंस स्टार्ट कमिंग इन पैरेलली, तो बट नेचुरल है कि इसका परफॉर्मेंस और ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और देखिए अब आप देख रहे हैं कि 6 इंस्ट्रक्शंस में कितने 9 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो पाएंगे। यस सर इसमें तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मतलब पैरेलल दे रहे हैं तो उसका नाम तो वेक्टर होना चाहिए, स्केलर कंपोनेंट्स, सुपर स्केलर, सुपर पाइपलाइन, एक्सीलरेटेड टाइम 3। नहीं, इसमें आर्किटेक्चर इसका ऐसा है कि इसमें पूरी की पूरी यूनिट आपकी रिप्लिकेट कर दी गई 3 टाइम्स पूरा, तो 3 टाइम्स वो पूरा का पूरा ये माने वही चीज़ है, रिपीट हो गया वो। नॉर्मली वेक्टर का मतलब मल्टीपल टाइम्स होता है, वेक्टर का स्केलर मतलब सिंगल टाइम होता है, 3 बार सेल मतलब 3 इंस्ट्रक्शंस को एक साथ बोलते हैं। आपका टर्मिनोलॉजी मैथमेटिकल टाइप से वो सही होगा, हालांकि जो नाम दिया गया है वो सुपर स्केलर ही दिया गया है, इसका नाम वेक्टर नहीं दिया गया है, ऐसे ही नाम चल रहा है। नाम पे बात करेंगे तो मैं बताऊं, अब कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग। जो अपना रैम नाम चलता है ना और रोम नाम चलता है, ये बी राम की बुक है, NIT पटना के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। ये रैम रोम यही गलत है जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। आप पूछेंगे कैसे, तो बताइए रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रीड रोम क्या है? लेकिन रोम में भी रैंडम ही एक्सेस होता है, सुन रहे हैं आप? रोम में भी रैंडम ही एक्सेस होता है। फर्क इतना है कि रोम में रीड होता है, केवल राइट नहीं होगा। उस हिसाब से, उस लॉजिक से रैम का नाम होना चाहिए रीड राइट मेमोरी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है वो ज़्यादा साइंटिफिक होता। तो नाम उसका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमेशा एक ट्रबल करता रहता है। भाई वो रैम है तो रोम भी तो रैम ही इनफैक्ट रोम भी तो रैमी के ऐसा उसमें भी रैंडम ही रहता है, सेक्वेंशियल नहीं रहता है। तो इस तरह के कुछ कुछ नाम प्रचलित हैं जो कि हम लोग, अब जैसे सुपर कंप्यूटर भी तो वैसे ही है, तो नाम कई सारे जगह ऐसे वेरी कर जाते हैं, थ्योरी से मैच नहीं करते। तो सुपर स्केलर अंडर पाइपलाइन ये उस प्रकार के हो गया कि जिसमें थोड़े डिपेंडेंसी के चांस है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग थोड़ा सा इंटेंशनल टाइम दे रहे। हम लोग नेक्स्ट में नहीं, हम लोग बोले 2 साइकिल के बाद आना, तो ये वाला वही है। और उसमें भी हमने पैरेललाइज कर दिया। तो ये इसमें आप देखेंगे कि इसमें कितना साइकिल हो गया, 9 साइकिल हो गया। 9 साइकिल में आपके 45 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, 45 साइकिल ले रहा है 9 इंस्ट्रक्शन के लिए। तो 9 × 5 माने 45 डिवाइडेड बाई 9 माने 5 इसका स्पीड अप हुआ। अब 9 इंस्ट्रक्शंस में 9 साइकिल, तो 1 इंस्ट्रक्शन में 9/9 CPI हुआ। और उल्टा जबकि जब 9 साइकिल में 9 इंस्ट्रक्शन, तो 1 साइकिल में IPC 1 हुआ। अब 100 मेगाहर्ट्ज़ के लिए लिया तो इतना हुआ, थ्रूपुट इसका आया 100 MIPS। एंड दिस इज़ टू बी यूज्ड इन हेवी डिपेंडेंसी कंडीशन। जब बहुत हेवी डिपेंडेंसी कंडीशन हो तो आप कहेंगे कि सर आप इसका भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताइए। तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इसको मेरी अंडर में एक PhD रिसर्च स्कॉलर ने इसको बनाया, हमने मिलके इसको डेवलप किया। तो ये अभी प्रैक्टिकली वैसा नहीं हो पाया। तो इसका नाम हमने दिया सुपर स्केलर अंडर पाइपलाइन। जैसे सुपर स्केलर सुपर पाइपलाइन था, तो ये सुपर स्केलर अंडर पाइपलाइन। तो हमने केवल थ्योरी नहीं दी। अब आप जानते हैं, आप कि PhD अगर कर रहे हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, सिमुलेशन करना पड़ेगा, C का प्रोग्राम बनाएं और वो सब बहुत सारी चीज़ें और हैं, लेकिन शॉर्ट में इतना से इतना ही है। तो ये हम ही लोग का इन्वेंशन है एक तरह से। तो अब थोड़ा सा अगर हम लोग एक कंपैरेटिव चार्ट के रूप में कर लिया, अब हम लोग उसका प्रिंसिपल थ्योरी वगैरह पढ़ चुके। तो जैसा बार बार इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, IPC, CPI मैंने नाम लिया, थ्रूपुट, स्पीड अप, ये 4 पैरामीटर पे एक कंपैरिजन कर लें अगर, तो स्केलर पाइपलाइन का IPC हमने देखा था
कि इतना था 0.42 2.33 CPI, मतलब 2.33 साइकिल्स आर टेकन फॉर वन इंस्ट्रक्शन, और इसका थ्रूपुट आया 42। फिर इस सुपर स्केलर में साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन रिड्यूस होकर 0.77। तो आप सोच सकते हैं कि CPI ज़्यादा होना अच्छा है कि कम होना अच्छा है। पहले तो यही सोचिए, अच्छा परफॉर्मेंस क्या कहलाएगा, CPI इज हायर वो कि CPI इज लोअर वो। CPI शुड बी लो और IPC शुड बी हायर। एक साइकिल में कितना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो पा रहा है, तो वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए आप देखिए कि IPC स्केलर में 0.42 है तो इसका 1.2 बढ़ गया। अंडर पाइपलाइन का स्केलर से भी घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि हमने 2 का इनिशियल गैप दिया था, इसलिए इससे भी घट गया। सुपर पाइपलाइन चलिए मॉडरेट है 0.5, मॉडरेट केवल नहीं है, इससे भी इम्प्रूव हो गया क्योंकि इसको हाफ साइकिल ही में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो और फिर सुपर स्केलर सुपर पाइपलाइन इस प्रकार का है और सुपर स्केलर अंडर पाइपलाइन यह भी एक प्रकार का मॉडरेट। तो मैंने आपको जस्टिफिकेशन भी दिया कि इसका परफॉर्मेंस या इसकी वैल्यू इतनी है तो उसका क्या थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन है। स्केलर से इसका ज़्यादा होना चाहिए था, थ्योरेटिकली है। अंडर पाइपलाइन का इससे कम इसलिए क्योंकि 2 साइकिल का आपने डिले कर दिया। फिर सुपर पाइपलाइन इसलिए इससे ज़्यादा है क्योंकि इसमें हाफ साइकिल ही में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और इस प्रकार से ये इसी प्रकार से CPI को क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, ये कम होना चाहिए। तो देखिए स्केलर का इतना है तो सुपर स्केलर का काफ़ी कम हो गया, अंडर पाइपलाइन का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, वही कारण कि आपने 2 का डिले किया, 2 साइकिल का। फिर सुपर पाइपलाइन इससे थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए, जैसा हमने बताया था आपको, हाफ साइकिल से चालू हो गया। फिर ये 0.66 थ्रूपुट की बात करें तो स्केलर का अगर इतना है तो सुपर स्केलर का बहुत ही ज़्यादा थ्रूपुट है। अंडर पाइपलाइन का थ्रूपुट थोड़ा सा स्केलर से घट गया क्योंकि 2 का हमने डिले कर दिया था, माने नेक्स्ट साइकिल में आने के बजाय उसके भी नेक्स्ट साइकिल में हमने स्टेटमेंट को वी अलाउड दिस स्टेटमेंट टू कम इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट साइकिल, ये वाला हुआ। और फिर इस प्रकार से ये थ्रूपुट हुआ। स्पीडअप भी उसी प्रकार का है। स्पीडअप बताइए ज़्यादा होना चाहिए कि कम? स्पीडअप ज़्यादा, कितने गुना फास्ट है? तो ये देखिए स्केलर वाला 2.14 टाइम्स फास्ट है, विदाउट पाइपलाइनिंग के कंपैरिजन में कितना फास्ट है, तो 2.14 टाइम्स फास्ट है। ये 6.43, ये अंडर पाइपलाइन इससे थोड़ा सा इन्फीरियर हो गया, सुपर इससे थोड़ा सा बेटर हो गया, सुपर स्केलर सुपर एटसेट्रा ये हो गया। तो ये आपके वेरियस टाइप्स ऑफ पाइपलाइंस ये मैंने बताया आपको। कब तक टाइम बाकी है अपना? 20 मिनट, माने कब तक जाएगा? 3:45। ओके। मैंने जितनी चीज़ कही कि इतना हम कवर करेंगे, तो मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि उतनी सब चीज़ें कवर ही कर लें, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जितने चीज़ कवर करें अच्छे से करें, छूट जाए तो छूट जाए, नहीं तो अगर कवर करेंगे तो कुछ समझ ही में नहीं आएगा। तो CPI IPC ये इसको हमने एक टेबुलर ग्राफिकल फॉर्म में भी शो कर दिया। टेबुलर तो पिछला वाला था कि स्केलर है, ये CPI इज़ शोन एज ग्रीन, IPC इज शोन बाई दिस मैरून या ब्राउन जो बोलें। तो CPI स्केलर का इतना है, माने साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, ये सुपर स्केलर में कम हो गया, ये कम होना चाहिए अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। CPI कम होना चाहिए, अंडर में ये थोड़ा सा बढ़ गया, सुपर में ये थोड़ा सा मॉडरेट होके आपका इतना हो गया। फिर सुपर स्केलर अंडर पाइपलाइन, वही चीज़ है, सेम चीज़ है। थ्रूपुट इन टर्म्स ऑफ MIPS जैसे मैंने बताया था, इसको भी क्योंकि हम लोग और आप भी मैथ्स वाले भी हैं, कंप्यूटर है, तो हर चीज़ हम लोग अगर ग्राफिकल फॉर्म में शो कर देते हैं तो एक संतुष्टि हो जाती है कि काम हो गया अच्छे से। तो इसीलिए
चीज़ तो मैं बता चुका था, लेकिन जस्ट ग्राफिकली शो कर दिया कि इस प्रकार का है। स्पीड अप को भी ग्राफिकल शो कर दिए। अब ये एक मैंने अपनी तरफ से बनाया, पूरा स्टडी करके एक समरी उसका, क्या चीज़ का, CPI को, ये टर्मिनोलॉजी कहीं बुक वगैरह की, इनफैक्ट ये पूरा एग्जाम्पल ये बुक का नहीं है, मेरा ही बनाया हुआ है, पूरा का पूरा कंप्लीट जो अभी आपको बताए, ये कहीं का कोई बुक का नहीं है, न रिसर्च पेपर का, पूरा थ्योरी लिखी है बुक में, उसको मैंने अपना फ्रेम किया समझाने के लिए। तो ये भी मेरा ही है। CPI माने साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, ये क्या होना चाहिए, ये आपका कम होना चाहिए। तो उस हिसाब से सबसे पुअर परफॉर्मेंस किसका है, माने सबसे ज़्यादा CPI किसका है, अंडर पाइपलाइन, फिर उससे कम है स्केलर, उससे कम है सुपर, उससे कम है सुपर स्केलर अंडर, फिर सुपर स्केलर, सुपर पाइपलाइन। IPC क्या होना चाहिए, माने पर साइकिल कितना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो पा रहा है, ये ज़्यादा होना चाहिए। तो सुपर स्केलर सुपर पाइपलाइन सबसे अच्छा है, क्योंकि सुपर स्केलर है सुपर पाइपलाइन है, वो ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा रहेगा। तो ये है, फिर सुपर है, फिर ये, इस प्रकार से लास्ट में आके अंडर पाइपलाइन। थ्रूपुट ज़्यादा होना चाहिए, माने MIPS ज़्यादा होना चाहिए, तो वो किसका है, सुपर स्केलर सुपर पाइपलाइन का सबसे ज़्यादा है। यही है कि उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि अभी एक स्टेज फिनिश नहीं हुआ कि उसी में दूसरा वर्क स्टार्ट कर दे, तो उसके लिए उतना माने उतना क्रिटिकली उसको एडजस्ट करना ज़रूरी है फिर। तो स्पीड अप भी इस प्रकार से सुपर स्केलर सुपर पाइपलाइन का सबसे ज़्यादा है। तो चूँकि रिस्क वर्ड बार बार अपना आया, तो मैंने बताया था कि प्रेजेंटली इंडिया इज़ इन ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग RISC-V प्रोसेसर जॉइंटली एट IIT मद्रास एंड ISC बेंगलोर अंडर डिजिटल इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान, and this is under Ministry of Electronics and Information Technology. This is an initiative by Government of India to promote manufacturing of microprocessors in India and to boost up the country's semiconductor ecosystem. RISC stands for Reduced Instruction Set Computer and 5 stands for 5th generation. RISC-V is being adopted around the world. तो जो बता रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं दैट इज़ वेरी मच रिलेवेंट as per today's demand, today's requirement. Government is also focusing a lot. तो पाइपलाइन क्लासिफिकेशन, मैं सोचता हूँ कि कुछ स्लाइड को मैं स्किप करूँ और आपका डिपेंडेंसी वाला प्रॉब्लम है उसको वो ज़्यादा आवश्यक है। तो ये तो पाइपलाइन क्लासिफिकेशन था, तो इन स्लाइड्स अगर टाइम मिलेगा तो वापस आएंगे। इतना ही है कि दो साइंटिस्ट ने पाइपलाइन, जैसे मैंने बताया था कि फ्लाइंस, फिंक्स एंड हैंडलर्स ने कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन की स्कीम दी, तो पाइपलाइन के क्लासिफिकेशन की स्कीम एक हैंडलर ने दी है और एक राममूर्ति एंड ली ने दी है। दोनों 1977 में है, अकॉर्डिंग टू लेवल और प्रोसेसिंग, अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजीज। और हैंडलर्स में आता है अरिथमेटिक पाइपलाइन, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, प्रोसेसर पाइपलाइन। इनफैक्ट जितना हम लोग अभी देखे स्केलर, सुपर स्केलर वगैरह, दैट इज़ ऑल अंडर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आर गेटिंग ओवरलैप्ड। तो इसीलिए बता रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के अंदर इंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड इनटू स्टेजेस और इसके अंदर स्केलर वगैरह ये सब हैं। तो बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हमने क्वेश्चन पेपर में दे दिया कि डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ पाइपलाइन, तो स्टूडेंट इज सपोज टू गिव ऑल दीज थिंग्स। और अगर हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन पेपर में दिया कि डिस्क्राइब इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, तब ये वाला अप्लाई होगा। अब बताइए, इस तरह की चीज़ें स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। या अक्सर मैं लगभग 15-20 साल से सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो जो SD, SIMD, MISD, MIMD बताए थे, उसमें एरो गलती बनाते हैं। माने अगर 50-60 कॉपी भी चेक करो तो शायद ही है जिसमें सभी का सभी एरो सही, माने सभी में एरो सही बनाया हो।
कभी इधर का बनाएंगे उधर का नहीं, कभी कुछ भी एरो बनाते हैं, जो पिछला मैंने बताया था SISD, SIMD, MISD, MIMD। तो ये उसी प्रकार का है। चलिए ठीक है, ये है, इसको अभी छोड़ देते हैं। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है, प्रोसेसर पाइपलाइन है, पाइपलाइनिंग, इंस्ट्रक्शन, स्टैटिक डायनेमिक, अभी इस समय इसको ड्रॉप कर रहे हैं। ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसके हैं कैलकुलेशंस, लेकिन कुछ एक प्रकार का मेरा पैशन बना कि YouTube में मैं अपना लेक्चर रखूँगा, तो मैंने ये सब जो अभी इस स्लाइड स्किप की, दैट इज़ ऑल अवेलेबल इन YouTube। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम एवरेज लेटेंसी, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड टीडियस कैलकुलेशन, जो कि मैंने कुछ हद तक पिछली स्लाइड्स में कवर किया है, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ किया है उसका पार्ट। लेकिन अगर ये 3 घंटे का लेक्चर होता तो वो हो जाता। तो हम लोग आ रहे हैं अब पॉइंट पर, डिपेंडेंसी वाले पॉइंट पे, कि पाइपलाइन हैजार्ड मैंने कहा वो क्या होता है, क्यों होता है। अब इसको आप ध्यान से समझिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ छोटा सा, ये एग्जाम्पल भी मेरा ही बनाया हुआ है, बुक का नहीं है। A = 2, सेकेंड, मान लीजिए आपने एक C का ही प्रोग्राम बनाया, कंप्यूटर में रन करने के लिए दिया, उसमें आपने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि A = 2, सेकेंड इंस्ट्रक्शन पे आपने लिखा है 2 + 3 - 5 + 7, ठीक है। थर्ड इंस्ट्रक्शन है B = A/2। तो आप बताइए कि B की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ऐसा एक C का प्रोग्राम हमने 2-3 लाइन का लिखा कंप्यूटर में, या आप अपनी कॉपी में कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप क्या सोचते हैं कि B की वैल्यू क्या आनी चाहिए इसमें। ये एग्जाम्पल मेरा ही बनाया हुआ है, कोई मुश्किल बात नहीं है। A = 2 हो गया। अब A = 2 + 3 - 5 + 7 करें तो 3 + 2 5 - 5 खत्म हो गया 7। तो B की वैल्यू आइडियली क्या आनी चाहिए, 7/2 माने 3.5 आना चाहिए। ऐसे ही ना कैलकुलेशन कॉपी पे आप करेंगे तो क्या आएगा कैलकुलेशन इसका। इससे तो एग्री होइए पहले, ये अगर एग्री नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक मैं माने साधारण सा एक छोटा सा एक ये किया हूँ मैं, कि आप कॉपी पे इसको करके देख लीजिए कि 3.5 से एग्री हैं कि नहीं। हाँ भाई, आपने कॉपी में कैलकुलेट किया A = 2, उसके बाद से A = ये वाला, तो ये पूरा कैंसिल, 7 बच गया। 7/2 माने 3.5 होता है। ये होना चाहिए। एक होता ये है कि कंप्यूटर में आपने पाइपलाइनिंग एग्जीक्यूट कर दी। अब ये मैंने दिखाने के लिए बताया है कि ये इंस्ट्रक्शन आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, I2 वाला, माने सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज लॉन्गर स्टेटमेंट एंड देयरफॉर इट इज़ टेकिंग लॉन्गर टाइम। ये हो सकता है कि वहाँ पे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कुछ और लॉग वगैरह होता है, एक्सपोनेंशियल, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एग्जीक्यूशन स्टेज, लोड, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट, राइट में एग्जीक्यूशन स्टेज ज़्यादा साइकिल लेता है। फिर कुछ ऐसे ही है ये स्टेटमेंट सेकेंड वाला। अब उसको ज़्यादा जब समय लगा, लेकिन ये पाइपलाइन में है, तो ये क्या करा, B A = 2 इसको लेने के बजाय वो इस वाले को लेके 2/2 को कैलकुलेट करके 1 दे देगा रिजल्ट। आप सोचिए कितना बड़ा एरर हो गया, मिस्टेक हो गई। क्योंकि A रजिस्टर में अभी क्या वैल्यू है उसके पास में 2। अब वो सेकंड स्टेटमेंट पाइपलाइन में स्टार्ट हो गया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, और थर्ड स्टेटमेंट में फिर से आ गया A, तो A जो है वही तो देगा। तो क्या है, तो 2 है, तो 2/2 माने 1। अब बताइए कितनी बड़ी मिस्टेक है। ये हुई डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम। और आप सोचिए कि रियल वर्ल्ड में अगर वो रिजल्ट ना दे तो वो ठीक है, लेकिन रिजल्ट गलत दे दे तो वो क्या से क्या कर जाएगा। रिजल्ट अगर गलत दे दे, उससे अच्छा मत दे, वो दैट इज़ ओके, लेकिन गलत दे तो वो क्या एक्सीडेंट है वो कर सकता है, आप सोच सकते हैं। अगर आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV 3 होता है अपना, अग्नि 5 का भी हम किए,
चंद्रयान वाला किए, अगर उसमें कोई भी जगह पे रॉन्ग रिजल्ट आ जाए तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। उससे अच्छा तो रिजल्ट मत दे, वो ज़्यादा ठीक है। तो आप सोचेंगे कि क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट। जब वो रॉन्ग ही दे दिया तो आप तो सोच ही नहीं सकेंगे कि कुछ गलत है, तो वो चीज़ हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम है हजार्ड, पाइपलाइन हजार्ड। तो इसलिए क्या होता है, इफ़ I1 रन स्लोअर देन I2 देन B इक्वल टू 2/2, दिस इज कॉल्ड हजार्ड। एंड देर आर 4 टाइप्स ऑफ हजार्ड्स in pipeline. One is called RAR, second RAW, third is WAR, fourth is called WAW. Read after read, read after write, write after read, write after write. 4 types of pipeline hazards exist. अब आपका आएगा थोड़ा मैथमेटिक्स। Let D is domain, R is range. It domain contains input or operands or independent variables. अब ऐसा होता है कि इंटरव्यू अगर में जाते हैं आजकल लोग इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं समझते, देखते होंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या होता है। तो ये डोमेन, ये रेंज, तो RAR हजार्ड, रीड आफ्टर रीड हजार्ड, इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। ऐड R1 R2 R3 सब्ट्रैक्ट R4 R5 R3, ये आपके रजिस्टर लेवल प्रोग्रामिंग है, माने थोड़ा सा मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। तो सिंपल है, लेकिन ये R1 R2 R3 आर रजिस्टर्स, और ऐड R1 R2 R3 का मतलब है, आपको बता रहा हूँ मैं, कि R2 प्लस R3 एंड स्टोर दी वैल्यू ऑफ R2 प्लस R3 इन R1, इतना ही मतलब है। इसका मतलब है स्टोर दी वैल्यू ऑफ R5 माइनस R3 इंटू R4। आप देखिए दोनों में R3 कॉमन है। हमने इसको मैथमेटिकली जब शो किया तो डोमेन I ये रेंज I में लिख रहा है, डोमेन J RJ में लिख रहा है, दिस इज फॉर इंस्ट्रक्शन J, दिस इज फॉर इंस्ट्रक्शन I, ऊपर वाला। और डोमेन I के कंटेंट क्या क्या है, ये दोनों की इनपुट R2 R3, अगर मैं वो बना दें तो मार्क था ना इसके अंदर में, ये आपका क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है आपका डोमेन ऑफ I। ये क्या चीज़ है, रेंज ऑफ I। ये क्या चीज़ है, डोमेन ऑफ J। ये क्या चीज़ है, रेंज ऑफ J। ऐसा है। तो डोमेन ऑफ I माने R2 R3 और रेंज I माने यहाँ पर क्या चीज़ है आपका R1, ये R1। डोमेन ऑफ J माने R5 R3 और रेंज ऑफ J माने R4, ये R4। तो R3 इज ए शेयर्ड वेरिएबल, R3 इज ए शेयर्ड वेरिएबल, लेकिन RAR ये जो है दिस इज नॉट इनफैक्ट ए हजार्ड, बिकॉज दिस इम्पोजेस नो हार्म, बिकॉज ओनली रीडिंग इज इन्वॉल्व, नो राइटिंग वर्क इज इन्वॉल्व। तो वो माने हार्मफुल नहीं है। थ्योरेटिकली कुछ बुक में इसको हजार्ड बोला जाता है, कुछ में नहीं बोला जाता, मैंने हजार्ड बोल दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा चाहिए कोई हार्मफुल नहीं है। लेकिन RAW देखिए तो दिस इज ए रियल हजार्ड। इंस्ट्रक्शन I क्या है, ऐड R1 R2 R3, इंस्ट्रक्शन J क्या है, R4 R5 R1। अब देखिए ध्यान से, वही हम लोग डील कर रहे हैं डिपेंडेंसी और वो सब प्रॉब्लम किस प्रकार का है। ये शॉम सीरीज से मैंने लिया है एग्जाम्पल और अपना कुछ ऐड कर लिया उसमें। हालांकि ब्रिक्स में भी ये डायग्राम दिया है, शॉम सीरीज में ये वाला एग्जाम्पल दोनों मिला के ये बनाए। तो R2 प्लस R3 को R1 में लिखो, ये मतलब है, और R5 माइनस R1 को R4 में लिखो। R1 इज शेयर्ड वेरिएबल, और इसमें भी जैसा पहले बताए कि डोमेन I इज R2 R3, रेंज I इज R1, डोमेन J इज R5 R1,
एंड रेंज जे इज़ R4। वही दिखाए कि डोमेन आई से रेंज में लिखा, डोमेन जे से रेंज जे में लिखा। डोमेन जे में क्या है, R1 R5 है, इसमें इस प्रकार का है। एनीवे यहाँ पे हमने बताया रेंज आई और डोमेन जे इज़ नॉट इक्वल टू 0, R1 इज शेयर्ड वेरिएबल। तो रीड आफ्टर राइट क्यों कहा जा रहा है इसको? ये रीड कर रहा है, ये राइट कर रहा है। देखिए ध्यान से, R1 ही को ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है और ये राइट कर रहा है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये अभी राइटिंग वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, माने R2 प्लस R3 R1 में अभी लिख ही रहा है, और पाइपलाइनिंग में आने के कारण वो R1 को पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो इस रिजल्ट को जो कि एक्सपेक्टेड होना चाहिए था उसको नहीं लेके R1 की कुछ वैल्यू पहले से थी उसी को लेके कैलकुलेशन कर दिया अपना। ये हो गया हैजार्ड। क्वेश्चन इज क्लियर? माने ये जो मैं बता रहा हूँ, R2 प्लस R3 को R1 में लाना चाहिए था और उस R1 को यहाँ पे पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये स्टेटमेंट स्लो है, इस वजह से इसने R1 अभी राइटिंग वर्क ऑफ R1 वाज नॉट कंप्लीट एंड इंस्ट्रक्शन जे है स्टार्टेड रीडिंग द वर्क द वैल्यू ऑफ R1, therefore it reads wrong result, wrong value and therefore result becomes wrong। अब ये बताइए, ये कोई एरर मैसेज भी फ्लैग नहीं करेगा, सीधा रिजल्ट ही गलत दे देगा। ये कहलाया राइट, रीड आफ्टर राइट हैजार्ड। इसके बाद से आपका आता है यस, राइट आफ्टर रीड हैजार्ड। इसमें क्या हो रहा है, ऐड R1 R2 R3 सब्ट्रैक्ट R2 R5 R6। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, कॉमन R2 R2 दोनों में कॉमन है। R2 प्लस R3 को R1 में लिखना है, ओके। और राइट आफ्टर रीड, मानिए ये रीड हो रहा है, रीड के बाद राइट हो रहा है, क्या चीज़, R5 माइनस R6 को R2 में लिखना है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे एरर का कारण। अगर मान लीजिए इंस्ट्रक्शन आई स्लोअर एंड इंस्ट्रक्शन जे इज फास्ट, तो अभी यहाँ पर R5 माइनस R6 R2 में ये लिख दिया, तो इसी R2 को ये पढ़ डालेगा और एरर यहीं पे, जबकि इसको पढ़ना क्या चाहिए था, इसके ऊपर कोई और लाइन रही होगी, उस R2 को यहाँ पे पढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, चूँकि इसका रिजल्ट बन गया और यही करंट है, तो ये करंट वाले को यहाँ लेके कर डाल रिजल्ट, हो गया एरर और हैजार्ड। क्लियर? देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये, यही है डिपेंडेंसी और यही है पाइपलाइन हैजार्ड। और चौथा एग्जांपल है WAW, राइट आफ्टर राइट। ऐड R1 R2 R3 सब्ट्रैक्ट R1 R2 R3, इसमें R1 इज शेयर्ड और कॉमन वेरिएबल। अब R2 प्लस R3 इज टू बी रिटेन इन R1, R4 माइनस R5 इज टू बी रिटेन इन R1। बताइए फाइनल वैल्यू आप क्या सोचते हैं होना चाहिए? अगर आपने एक C का प्रोग्राम इतना बड़ा बनाया, उसके बीच में ये दो लाइन्स हैं, तो फाइनल वैल्यू क्या होना चाहिए, R1 की R4 माइनस R5 होना चाहिए। हुआ ये कि ये स्लो है, ये फास्ट है। नहीं, ये स्लो है, ये फास्ट है। तो ये R1 ने तो लिखा, लेकिन इसके लिखने के बाद से इसने लिखा, ये स्लो है, सॉरी इसने लिख दिया, ये फास्ट है, इसके बाद से इसने कंप्लीट किया, तो फाइनल वैल्यू ऑफ R1 विल बिकम R2 प्लस R3, वेयर एज इट शुड हैव बीन R4 माइनस R5 एंड देयरफॉर दिस विल गिव रॉन्ग रिजल्ट एंड दैट इज कॉल्ड दिस राइट आफ्टर राइट हैजार्ड। ठीक है, अब टाइम हो रहा है, अब मैं बताता हूँ कि इसको अवॉइड करने का क्या तरीका होता है। ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट स्लाइड, ये सभी प्रकार के हैजार्ड को अवॉइड करने के तरीके कई सारे हैं, मैंने रखे भी हैं अपनी स्लाइड में, लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन मैं सबसे सिंपल और सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ पाइपलाइन हैजार्ड अवॉइड करने का, जो कि क्या है,
इंटेंशनल टाइम डिले। इंटेंशनल टाइम डिले का मतलब हिंदी में जानबूझकर दिया गया डिले। तो कोई भी चीज़ है तो आप इंटेंशनल टाइम डिले दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, RAW का है, रीड आफ्टर राइट का, ऐड R1 R2 R3 एंड सब्ट्रैक्ट R4 R5 R1। ध्यान से देखिएगा इसको। तो R2 प्लस R3 इज टू बी रिटन इन R1, और इस वैल्यू को उसको यहाँ पर पढ़ना चाहिए। हम लोग एक एज ए प्रोग्रामर वही सोचेंगे कि इस वैल्यू को यहाँ लेगा, ओके R5 माइनस R1 को R4 में आना चाहिए था, लेकिन और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रीड माने रीड आफ्टर राइट हो रहा है, लेकिन हुआ ये कि ये स्लो है, तो इसने यहाँ पे रीड करने के लिए इसके पहले की कोई वैल्यू को पढ़ लिया, इस प्रकार से गलत रिजल्ट हो गया। यही प्रॉब्लम था बेसिकली इसका। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब फिर से आ जाइए पाइपलाइन का लोड डिकोड फेच एग्जीक्यूट राइट सॉम सीरीज से और कुछ अपना मिला के मैंने बनाया ये वाला। अब ऐड R1, ये देखिए स्टेटमेंट किस प्रकार से बढ़ता है पाइपलाइन प्रोसेसर में। आपका पहला स्टेटमेंट चालू हो गया, माने पहला पर्सन चालू हो गए, उसके बाद से दूसरे स्टेट वो आ रहे हैं। आप लोग ये देखते होंगे कभी कभी, जैसे यहाँ पे एग्जामिनेशन हो रही है, इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी लगी हुई है, सामने कोई खड़े हो गए, बोले कि नहीं नहीं एडमिट कार्ड दिखाओ तो हमें एंट्री देंगे तुमको, ठीक है, वो दिखाते जा रहे हैं, लेकिन लगा कि अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो बोलते हैं रोक देना भाई, तो वो वहाँ पे ही रोक देंगे, एंट्री नहीं देंगे। तो उसी प्रकार का कुछ ये है कि ऐड सब्ट्रैक्ट, इसने तो लोड किया और फिर लोड के बाद से ये वाला स्टेटमेंट डिकोड फेज में आ गया, और जब ये डिकोड में आया तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया लोड में, फर्स्ट स्टेज माने फर्स्ट स्टेज में सेकंड साइकिल में, फर्स्ट स्टेज में सेकंड साइकिल में। अब ये नॉर्मल वे में बढ़ रहा है, ये होके फेच में आ गया। अब ये सब्ट्रैक्ट वाला भी थर्ड साइकिल में, ये सेकंड स्टेज डिकोड में आ गया, लेकिन अब फोर्थ साइकिल में सब्ट्रैक्ट को आने से रोक दिया हमने, और उसको बोला नहीं फोर्थ में भी मत आओ, इवन फिफ्थ में भी मत आओ, अब तुम आओ डायरेक्ट सिक्स्थ में। तो सोच ये है पीछे में कि जैसे एक पर्सन यहाँ थे, फिर यहाँ थे, फिर यहाँ थे, तो हमने कहा नहीं ये वाले यहाँ आए तभी नेक्स्ट को मत आने दो, ये जब यहाँ चले जाएंगे तो वहाँ पे नेक्स्ट को आने दो। उसी सोच से हमने सब्ट्रैक्ट को यहाँ पे आने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया और बोला नहीं यहाँ भी मत आओ, उसके बाद से यहाँ भी मत आओ, कहाँ दो साइकिल रुक के अभी थोड़ा वेट करो तब आओ। इस प्रकार से एंटायर प्रोसेस गॉट डिलेड बाय 2 साइकिल्स हियर, बट योर सेफ्टी इज इंश्योर्ड नाउ, and that is why this is the best possible way to avoid this hazard, pipeline hazard. So in this way we have seen this hazard avoidance also by giving intentional time delay. So here I will have to finish up because other things will be more tedious. Various things are there, collision free scheduling, etc. Various things are there. Reordering, डायनेमिक शेड्यूलिंग, टॉमसिलो एल्गोरिथम, स्कोर बोर्डिंग, ये सब है। स्कोर बोर्डिंग, रजिस्टर रीनेमिंग, ये एक है फ्लोटिंग पॉइंट एडर, ये मैंने यूट्यूब में वीडियो रखा है, ये इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है एक्चुअल कंप्यूटर में। अरिथमेटिक पाइपलाइन हम लोग नहीं पढ़ पाए। होता ही है कि कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, कंप्यूटर में आप एक सी कमांड में आपने प्रोग्राम बनाया, उसमें कई सारी लाइन दी, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ 1.2 प्लस 2.3 का एक लाइन थी, उसके बाद से नेक्स्ट लाइन आपने लिखा 3.4 प्लस 5.6, कई सारी लाइंस चली आ रही, बहुत सारी, एक के पीछे एक। तो हाउ टू कंप्यूट दैट within a computer, that is performed by a separate unit that is called floating point adder,
और ये फ्लोटिंग पॉइंट एडर, अब इसमें मैंने समझाया है, इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स में गो थ्रू दैट वीडियो लेक्चर ऑफ माइन विच इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर फ्लोटिंग पॉइंट एडर। फ्लोटिंग पॉइंट एडर, फ्लोटिंग पॉइंट एडर मतलब 1.2 प्लस 2.3, तो 1.2 प्लस 2.3 that is called floating point, and in this way this will go on. तो ये तो just I have told you one example. तो in a nutshell, the method by which we can attain higher throughput, higher speed without increasing much the hardware and without increasing much the cost is pipelining. Pipelining offers an economical way to realize temporal parallelism in digital computers. ठीक है, तो एनी क्वेश्चन? सर नमस्कार। मैंने सर शॉर्ट में आपको बताऊं कुछ इंटरेस्ट, अमेरिका से निगोशिएशन चल रहा है और ये सुपर कंप्यूटर अमेरिका देने से मना कर रहा है। उस समय का एक इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन भी होता था। तो क्रे XMP इंडिया वाज ट्राइंग टू बाई एंड अमेरिका वाज इम्पोजिंग वेरियस कंडीशंस। तो तब के अपने प्राइम मिनिस्टर ने CDAC चेयरमैन से रिक्वेस्ट किया कि बहुत हो गया, बताइए कि हम लोग बना सकते हैं क्या। तब उन्होंने कहा ठीक है, फिर एक टाइम लिमिट सेट हुई। यस यस, और उसके बाद से ऑल ओवर वर्ल्ड से अच्छे अच्छे जो इंडियन साइंटिस्ट थे इधर उधर, तो उनको यहाँ पे बुलाए गए और फिर वो अपना परम सुपर कंप्यूटर बना। यस यस, 90s में आपको याद होगा ये पेपर की हेडलाइन होती थी हमेशा। मेरे को तो भी याद है, प्रोफेसर ओपी व्यास साहब जो अपने फाउंडर थे, जी जी, इतना बड़ा कंप्यूटर था कि ये दिखते नहीं थे, कंप्यूटर में बैठते थे। You are sitting in this Yes, yes, yes. room, Yes, sir. and you are sitting in front of the computer. ऐसा था। अब विजय भटकर साहब भी यहाँ आए थे एक बार, जी 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 संजय तिवारी साहब। जी, हिस्ट्री है, यू आर राइट। और आज की तारीख में जैसे आपने उसमें एक बता रहे थे ना कि आज जिसको हम लोग सोच रहे हैं, यस 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 यस, सिडनी फंडबैक ने कहा है, की बात कर रहे हैं, अगले बार उसमें यस, वो बिग्स के बुक का एकदम फर्स्ट पेज पे लिखा है कि सुपर कंप्यूटर्स ऑफ 10-20 years बैक आर नाउ इट इज नॉर्मल कंप्यूटर्स, और सुपर कंप्यूटर्स ऑफ नाउ इट इज विल बिकम ए नॉर्मल कंप्यूटर। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस साइड अगर हो? question you will ask about, and the two leading conference of computer science are here. So it is a wonderful opportunity. इसलिए बिल्कुल आप करिए। Sir, from Ministry of Former head एक previous suppose we want to access some supercomputer, is there any facility? Yes, 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 yes. IIT Bombay, IIT Kanpur, they are providing the facility to access, and there is a proper method. You being a this university teacher, you will have to request with justification what type of work you want to carry out, and then they will give you some time. Maybe you may be given 1 week time also. You will be given access over there. They will ensure your identity, etc., and then they will give you the time also. You can try it. ठीक है, it is Dr. Sanjay Kumar India. So I have kept these lectures there. Dr. Sanjay Kumar India. What is our planning of Pandit Ravisankar Shukla? You are going to procure that high performance computer. आपने we have a Sir, हो गया था, के साथ हो रहा है ना, तो क्या that is dropped. oh, drop हुई। Totally dropped. I had requested a lot कि देखिए वही अमाउंट का आप 10 कंप्यूटर वहाँ 10 कंप्यूटर यहाँ ऐसा आप ले लेंगे तो वो एक तरह का वेस्टेज है। एक लंप सम करोड़ में वो फिर आपको मिलेगा नहीं, लेकिन वो समहाउ मटेरियलाइज नहीं हुआ। उसको छोटे छोटे स्कैटर्ड जो आते हैं, इधर से रिक्वायरमेंट उधर से रिक्वायरमेंट, तो वैसे ही हो गया, वो नहीं आ पाया। चाहे तो अंदर ही कर देते हैं, सिस्टम एक सरकार। और कोई क्वेश्चन? इतना लेट हो जाएगा, आजकल गणेश पूजा में ठीक है।
you, sir. Thank you. Such a wonderful lecture. High performance chemistry.